حشر میں سید وہ تم سے بھی کہیں گے دیکھنا۔ دیکھیے کل شیعہ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، آیت اللہ علی خامنئی انہوں نے ایسا کچھ کہا ہو کہ ہاں مولا علی کو ہم انبیاء سے افضل مانتا ہے، اگر انہوں نے ایسا کچھ کہا ہو، ویڈیو میں موجود ہے، انہوں نے فتویٰ دیا ہے تو دکھاؤ ہمیں۔ مطلب ڈھونڈ ڈھونڈ کے زبردستی کسی کا نقص نکالنا، کسی کی غلطیوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالنا، ویسے تو نہیں مل رہا ہے ٹھیک ہے، لیکن ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکال رہا ہے ٹھیک ہے، لیکن کچھ مولوی ابھی فتویٰ دینے میں لگا ہے، یہ ایسا ہے وہ ایسا ہے۔ بھائی تو کیا ہے، تو نے کیا کیا یار زندگی بھر میں؟ بھائی مجھے تو کبھی کبھی شک ہوتا ہے ان لوگوں پہ کہ کہیں امام مہدی علیہ السلام آ جائے دنیا میں اور ان سے نہ پوچھ بیٹھے کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے، تم کس فرقے سے ہو۔ بے ادب کہیں کا، بات کرنے کا تمیز نہیں ہے، مطلب کس سچویشن میں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، کب چپ رہنا چاہیے۔ افسوس ہر زندگی بھر فتویٰ بازی اور نقص نکالنے میں نکال دیا زندگی۔ کبھی کچھ اچھی بات ہے، کبھی کچھ اچھا کام، کبھی کچھ میدان میں نکال کے کچھ اچھا کرنا انسانیت کے خاطر، اسلام کے خاطر۔ مطلب ان لوگوں کو دیکھ کے نا مطلب دین سے آپ کو، اسلام سے جو ہے نا دوری اختیار کرنے کا من کرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ بھلے وہ شیعہ ہے لیکن ان کا عقیدہ خراب نہیں ہے، آپ پورے کل شیعہ کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کے پاس یہ سوال کا جواب ہے، اگر یہ دکھا سکتا ہے کہ آیت اللہ علی خامنئی صحابہ کا گستاخ ہے، یا انہوں نے مولا علی کو انبیاء سے افضل کہا ہو، یا بھی اور جو بھی مسئلہ ہے آپ کا ٹھیک ہے، اگر آپ دکھا دو ٹھیک ہے ویڈیو میں کے مادھیم سے یا پھر ان کا کوئی فتویٰ، تو پھر ٹھیک ہے ہم معافی مانگ لیں گے اور یہ بھی کہہ دیں گے کہ ہاں یہ شخص ان کا عقیدہ خراب ہے تو ہم رجوع کرتے ہیں ٹھیک ہے، سیدھی سی بات ہے یار۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خامنائی کا کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے کہ جو عقیدے میں خرابی پیدا کرتا ہو۔ اگر کوئی ایسا عقیدہ یا اس طریقے کی کوئی بات مل گئی تو ہمارے صراط الاسلام بھائی اپنی بات سے توبہ اور رجوع کر لیں گے۔ دوسری بات انہوں نے مثال کے طور پہ یہ دی کہ عقیدے کے اندر یا تو ان کا کوئی فتویٰ دکھاؤ کہ جو عقیدے کی خرابی بیان کرتا ہو، یا پھر ان کی کوئی سپیچ دکھاؤ جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ ان کا عقیدہ خراب ہے۔ ان اصولوں کے حساب سے تو اسلام بھائی خود بھی دجال کا کوئی ایسا فتویٰ نہیں دکھا سکتے کہ جس کے اندر دجال کے عقیدے کی خرابی پیدا ہوتی ہو، اور نہ ہی دجال کی کوئی سپیچ دکھا سکتے کہ جس سے پتہ چلتا ہو کہ دجال نے صحابہ یا کسی کی توہین کی۔ البتہ یہ کہ دجال کافر پھر بھی ہے، چاہے اس کا فتویٰ ہو یا نہ ہو، اس کی سپیچ ہو یا نہ ہو۔ کسی شخص کا خود میں شیعہ ہونا اور اس کا شیعہ عالم ہونا، اس کے باوجود کسی کا یہ کہنا کہ وہ عالم ہے لیکن عقیدوں میں خرابی نہیں ہے، یہ بالکل ایسی ہی بات ہے کہ جیسے موجودہ انڈیا کے اندر کچھ موذی منتری ہیں اور ان کے بارے میں ہمارے بعض مسلمان جو تلوے چاٹنے والے ہیں یہ کہتے ہیں کہ فلاں اچھا کام کر رہا ہے۔ ٹھیک وہی معاملہ صراط بھائی کا بھی ہے۔ لہٰذا کسی کی اسپیچ یا فتویٰ نہ ہونا لیکن خود کا اس کا شیعہ ہونا یا کسی باطل فرقے کا ہونا ہی کافی ہے کہ اس کے عقیدے درست نہیں ہیں، ورنہ تحریر اور اسپیچ یا لٹریچر کی بات ہو تو دجال کے بارے میں بھی یہ نہیں دکھا سکتے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی آئیں گے تو کچھ لوگ یہ پوچھیں گے کہ آپ کس فرقے سے ہو۔ اس کا یہی منطقی جواب آپ کو اگر یہ دیا جائے کہ جب دجال آئے گا تو آپ جیسے بھی کچھ لوگ ان کے ساتھ ہو جائیں گے، اور دجال بھی ان کو بنجر زمین سے کھیتی نکال کے دکھائے گا، مردوں کو زندہ کر دے گا، اور جنت بھی دکھائے گا، جہنم بھی دکھائے گا، اور لوگوں کو اپنی جنت میں داخل کرے گا۔ وہاں بھی کچھ لوگ اس کے اسی بہکاوے میں آ کر اس کی جنت میں داخل ہوں گے جو حقیقت میں دوزخ ہوگی۔ پھر آپ نے کہا کہ علماء تو صرف غلطیاں نکالتے ہیں، جب دیکھو غلطیاں نکالنا، لوگوں کو بتانا۔ ایران کے اس مسئلے پہ اگر علماء آپ کو عقائد کی حفاظت کر رہے ہیں تو اس کو غلطی نکالنا نہیں کہتے۔ اسلام کے اندر باطل عقائد اور باطل قوتوں نے ہمیشہ سے حملہ کیا ہے، اور اسی حملے سے علماء نے اسلام کی حفاظت کر کے آپ تک صحیح دین پہنچایا۔ لہٰذا اس کو غلطی نکالنا نہیں، غلطی بتانا کہتے ہیں، اور لوگوں کی غلطی بتانا، ان کے مکر و فریب سے آگاہ کرنا، یہ بہت سارے موقعوں پر جائز ہوتا ہے، جیسا کہ صلح کلی انفلوئنسر کے تعلق سے ہم بھی کئی مرتبہ لوگوں کو آگاہ کر چکے۔ شریعت یہاں تک اجازت دیتی ہے کہ اگر کوئی شخص جھوٹ بول کے دودھ میں پانی ملاتا ہو اور اس کو پیور دودھ کے نام سے بیچتا ہو تو مسلمانوں کو آگاہ کر دیا جائے کہ یہ شخص دھوکے باز ہے۔ یہاں تک شریعت اجازت دیتی ہے کہ اگر کوئی شخص جو سید نہیں ہے اور وہ مشہور ہے لیکن کہیں اور شفٹ ہو گیا اور وہ خود کو وہاں سید کہلاتا ہے تو لوگوں پہ لازم ہے کہ اس سے لوگوں کو آگاہ کریں تاکہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت کا فائدہ نہ اٹھا سکے۔ لہٰذا اس کو غلطی نکالنا نہیں، غلط چیز جو معاشرے کے اندر ہے اور لوگوں کو اس کی خبر نہیں ہے اس سے آگاہ کرانا کہتے ہیں۔ اگر قادیانی کے کفر سے آگاہ نہ کرایا جاتا تو آپ جیسے انفلوئنسر یا آپ سے پہلے والی آبادی کبھی ان کے کفر نہ جان سکتے۔ اسی طریقے سے شیعہ کے کفر کوئی آج نئی چیز نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو غازہ کے مسلمانوں سے ہمدردی ہو، لیکن غازہ کے مسلمانوں کی عظمت یا ان کی ہمدردی دوسرے انبیاء اکرام یا صحابہ اکرام کی عظمت سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا شیعہ کے کفر کے اوپر 1400 سال سے علماء کا فتویٰ ہے، یہاں تک کہ تمام علماء اس پہ متفق ہیں کہ کچھ عقائد شیعوں کے ایسے ہیں کہ جو بالکل سرے سے اسلام کے عقائد اور نظریات ہے ہی نہیں۔ آپ نے بات بالکل صحیح کہی کہ ہر شیعہ کو ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ وہ شخص کافر ہے، یعنی شیعوں کے اندر بھی 2-3 گروہ الگ الگ ہیں، بعض کے عقائد بدعت تک ہیں، کفر تک نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس خامنائی کا تعلق شیعہ گروہ کے ساتھ ہے
उस ग्रोह का अकीदा वही है जो शियाओं की मेजॉरिटी का अकीदा है, यानी अपने 12 इमामों को सबसे अफजल और ऊपर समझना, यहाँ तक कि अंबिया से अफजल और ऊपर समझना, कुरान को नाकिस समझना, यानी ये कुरान मुकम्मल नहीं है, इसमें फेरबदल समझना, जो कि इस खमैनी के पहले वाले लीडर खुमैनी की किताब से बिल्कुल जाहिर है कि हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर के ताल्लुक़ से ऐसे अल्फाज के उन्होंने कुरान में तब्दीली करी, यहाँ तक कि हराम को हलाल कर दिया। इसके ताल्लुक़ से हमने पहले एक वीडियो बनाई हुई है, जिसको तफसील देखनी हो वो वहाँ देख सकता है। यानी ये उलमा ही हैं जो ख़राब अकायद और आवाम के दरमियान में एक आड़ होते हैं। अगर इस आड़ को हटा दिया जाए तो बद मज़हब या बद दीन या बद अकीदों की आंधी के अंदर आप जैसी आवाम इस तरह बह जाएगी कि जैसे तूफ़ान में एक तिनका। रह गए उलमाओं के ताल्लुक़ से ऐसे जुमले इस्तेमाल करना कि कभी कुछ अच्छा किया है ज़िंदगी में या कुछ अच्छा करो, सिर्फ बैठे बैठे फतवाबाजी वगैरह। तो इसका आसान जवाब ये है कि आप भी सिर्फ बैठे बैठे वीडियो ही बना रहे हो, ईरान में जाकर लड़ तो आप भी नहीं रहे। लिहाजा आपकी बनाई हुई वीडियो और दूसरे उलमा की बनाई हुई वीडियो के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपकी वीडियो से उम्मत का किसी तरीके का कोई नफ़ा नहीं, सिर्फ व्यू के लिए आप उस पर रिएक्शन देते हो, जबकि उलमा की वीडियो दीन के अंदर तबलीग का भी काम करती हैं, लोगों के अकायद की हिफाजत करती हैं, यहाँ तक कि उनके ज़रूरी मसाइल और ज़िंदगी जीने के मामलात को भी हल करती हैं। फिर एक बात आपने कही कि क्या सिचुएशन है, कभी चुप भी रहना चाहिए। तो ईरान के मसले पे अभी तक मुझे नहीं लगता कि हमारे उलमा ने ईरान के मसले पे किसको क्या साथ देना है वो उन पे छोड़ा कि आपको किसके साथ जाके वॉर में शामिल होना है, आप हो सकते हैं। हमारे उलमा ने वॉर के बारे में इतना नहीं बोला जितना शिया के अकीदे के बारे में बोला। यानी सबसे पहले आपको ज़रूरत है अपने कानों की सफाई कराने की, कि आप समझ सको कि फेवर करने को ईरान को उसको उलमा मना कर रहे हैं या खामेनाई या शियाओं के अकीदे को मुसलमान मानने को। यानी आपको फेवर करना है आप करिए, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। ये बात तो पहले भी कई बार की जा चुकी है कि अगर जालिम के ख़िलाफ़ किसी भी धर्म के बंदे खड़े हैं तो सब मिलके भी जालिम के ख़िलाफ़ खड़े हो सकते हैं। यहाँ वो मसला ही नहीं है। मसला है कि जो जालिम के ख़िलाफ़ खड़ा है उसको मुसलमान भी मान लिया जाए। तो जिस तरह आप कह रहे हैं कि खामोश नहीं रहा जाता उलमा से, बहुत सारे मामलों पे बोलते हैं, तो यही रूल आप पे भी अप्लाई होता है कि आपको किस में शामिल होना है, जंग में किसका फेवर करना है वो आप जाने, लेकिन अकायद के मामले में आपसे भी खामोश नहीं रहा जाता। आप क्यों एक कुफ्र और काफिर को मुसलमान साबित करने पे लगे? जब आप जाहिर सी बात है कि किसी के कुफ्र को ईमान में तब्दील करेंगे तो वहाँ पे अहले इल्म या तालिब इल्म अपना काम ज़रूर करेंगे, क्योंकि मसला दीन का है। और अगर आप राजनीति या दुनिया के चल रहे माहौल की बात करें तो वहाँ पर आप किसी का भी साथ दीजिए, उलमा ने आपका हाथ पकड़ के रोका नहीं है। लेकिन जब आप दीन के अंदर अपनी राय दाखिल करेंगे जिसके लिए आप कैपेबल भी नहीं हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ उलमा अपना काम ज़रूर करेंगे। अब मैं आपको कुछ सैंपल दिखा देता हूँ, ताकि आपने कहा कि अगर गलती मेरी होगी तो आप अपनी गलती से तौबा रुजू करेंगे। सबसे पहले आप ये किताब देखिए, इसका फ्रंट में नाम देखिए अशूरा। अशूरा ये किताब है और इसके नीचे लिखा है इन द थॉट ऑफ इमाम खामेनाई, यानी इमाम खामेनाई के जो थिंकिंग है, जो थॉट है, ये उनकी स्पीच के ऊपर लिखी गई किताब है। और ये खुमैनी नहीं बल्कि खामेनाई है, यानी जिसका इंतकाल अभी हुआ है, ये उनके ताल्लुक़ से किताब है। तो इसलिए आप ये कन्फ्यूज़न पैदा ना करें। इस किताब के अंदर क्या है कुछ उसकी झलकियाँ देखेंगे, लेकिन आप सबसे पहले ये देखें कि जो इमाम खामेनाई जिसका अब इंतकाल हुआ है उसका ताल्लुक़ शिया के कौन से गिरोह के साथ था। जब शिया का गिरोह साबित हो जाएगा तो आपको अकीदा खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आप इनकी विकीपीडिया देखें तो आप वहाँ पर देखेंगे कि इनका जो शियाओं का गिरोह है उसके अंदर एक 12 नाम का गिरोह होता है, यानी जो 12 इमामों को सबसे अफजल मानता है। इसको इश्ना अशरिया भी कहते हैं, यानी शियाओं का वो गिरोह कि जो 12 इमामों को सबसे अफजल मानता है। तो आप इनकी विकीपीडिया के अंदर पढ़ लें कि खामेनाई का ताल्लुक भी इसी गिरोह के साथ है और इसी गिरोह का अकीदा जो है वो 12 इमामों को अंबिया से अफजल समझना है, कुफ्र है। तो इतने पढ़े लिखे तो आप भी हैं, चैट जीपीटी कर सकते हैं, तो किसी की विकीपीडिया या इंसाइक्लोपीडिया भी खोल के आप देख सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप सबसे पहले ये देखें कि अगर पेरेंट्स के बारे में आप देखेंगे, खामेनाई के जो फादर है सैयद जवाद खामेनाई, जो कि एक इस्लामी स्कॉलर है, यानी इनके बाप शियाओं के इस्लामिक स्कॉलर रह चुके हैं, यानी शियाओं के एक आलिम दीन रह चुके हैं। और ख़ुद खामेनाई भी शियाओं के एक बड़े आलिम, बल्कि ऊंची पोस्ट के ऊपर रहे काफ़ी टाइम तक। तो इससे पता चलता है कि ये कोई आवाम का बंदा नहीं है कि जिसको अकीदे का कुछ नहीं पता। एक शख्स अपने फ़िरके का एक बड़ा आलिम और सुप्रीम लीडर है और उसको अपने अकीदे का नहीं पता। ये बात इतनी बचकाना है कि जैसे कोई शख्स MBBS डॉक्टर हो और उसको पैरासीटामोल के बारे में ख़बर ना हो। ये बात इतनी बचकाना है। दूसरी चीज़ आप देखेंगे कि इमाम खामेनाई को इसके अंदर लिखा है द लेट इमाम खुमैनी आल्सो चूज़ हिम टू लीड द फ्राइडे प्रेयर इन द तेहरान, कि खुमैनी ने जुमे के नमाज के बाद जुमे के दिन इनको लीडरशिप दी। किसको? खामेनाई को। किसने दी? खुमैनी को। खुमैनी ने। खुमैनी की किताब
कश्फुल असरार के ताल्लुक से कि जिसके अंदर हज़रत उमर, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के ताल्लुक से बहुत गलत बातें लिखी हैं। उस शख्स ने ख़मैनी को अपने बाद जो है वो लीडर चुना। एक बच्चे से आप पूछिए कि कभी भी कोई धार्मिक लीडर अपने बाद जिसको गद्दी देता है वो अपने दूसरे अगेंस्ट अकीदे वाले को कभी नहीं देता। ये बात तो भारत की राजनीति को देखते हुए बच्चा भी सीख गया होगा। जब कोई सुप्रीम लीडर अपने बाद किसी को गद्दी देगा या किसी को लीडरशिप देगा तो वो ऐसे अकीदे वाले को नहीं देगा कि जिससे उसका अकीदा मैच ना खाता हो। तो इससे मालूम चला कि ख़ुमैनी भी एक आलिम दीन था शिया का और वो सारे अकीदों से वाकिफ़ था, और ख़ामेनाई भी एक आलिम दीन था, सारे अकीदों से वाकिफ़ था। अब आप कहेंगे कि अकीदों से वाकिफ़ कैसे, तो इसका सबूत मैं आपको दे देता हूँ। इसी किताब अशूरा के अंदर आप ख़ामेनी के टीचर को जब देखेंगे, यानी ख़ामेनाई के टीचर को जब देखेंगे, तो इसके अंदर इमाम ख़ुमैनी का भी नाम दर्ज है। यानी ये इमाम ख़ुमैनी जो सहाबा इकराम की तौहीन अपनी किताब के अंदर की हुई है और वो किताब अभी भी है, ये उनका शागिर्द है। लिहाजा शागिर्द और उस्ताद के अकीदों में इतना बड़ा फेर हो कि आपने कहा उनके अकीदे ख़राब हैं, ऐसा साबित ही नहीं। किसी का खुद शिया आलिम होना इस बात का सबूत है कि उसके अकीदे दुरुस्त नहीं, और एक सबूत कि इनका ताल्लुक़ शिया फ़िरके के इस्ना अशरिया के साथ है, यानी 12 जो इमाम 12 इमामों को मानते हैं उनके साथ। उनका अकीदा क्या है अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अलावा आप देखेंगे कि इस किताब के अंदर ये लिखा है, द बैटल ऑफ इमाम अली अगेंस्ट द फैब्रिकेशन लेड बाय मुआवियाज कैम्प इन शाम, के इमाम अली को यानी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जो मुआविया हैं उनके द्वारा झूठी अफवाहें या उनके ग्रुप के द्वारा झूठी अफवाहें जो है वो फैलाई गई, जिसकी वजह से उनको जंग करनी पड़ी। यानी यहाँ पे हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके ग्रोह को जो है वो यहाँ पे एक तरीके से लान तान करने की कोशिश की गई। दूसरी बात आप ये देखें, इमाम ख़ुमैनी की रिसर्च, इमाम ख़ामेनाई की रिसर्च क्या है। यानी मैं इस बंदे की बात कर रहा हूँ जिसके ताल्लुक से आपने कहा कि कुछ अकीदा नहीं है। लोग कंफ्यूज करते हैं कि वो तो ख़ुमैनी था, उसने गलत लिखा है। ये बंदे ने गलत नहीं लिखा। अगर उसने गलत लिखा है तो उसने ऐसे बंदे को आगे खिलाफत दे दी कि जो इनके अकीदों का था ही नहीं। अगर ऐसा ही है तो आप नरेंद्र मोदी से मुसलमान को प्रधानमंत्री बना दो, तो आपको पता चलेगा कि राजनीति में दूसरी फिक्र के बंदे की एंट्री जल्दी नहीं हो सकती। अगर कोई तंजीम है वो अपनी सोच और फिक्र के बंदे को अपनी तंजीम के ऊपर गद्दी नशीन करेगी, और ये बात तो बच्चा भी समझता है लेकिन हमारे इन्फ्लुएंसर नहीं समझते। अब इसके अंदर वो सोच बयान कर रहे हैं इमाम ख़ामेनाई, कहते हैं कि द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ये सच्चाई का रास्ता था, शिर्क से पाक, लोगों की मदद और प्यार और भाईचारे का रास्ता, ये रास्ता आगे कंटिन्यू रखना चाहते थे। किसके ज़रिए रखना चाहते थे? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़रिए, यानी खिलाफत के ज़रिए आगे रखना चाहते थे। लेकिन ये कहते हैं कि कॉन्स्पिरेसी ऑफ अल सकीफ़ा, कि जो अल सकीफ़ा मकाम पर जो ये विवाद हो रहा था, कॉन्स्पिरेसी हो रही थी, उसकी वजह से ये चीज़ अप्लाई नहीं हो सकी। यानी इन शॉर्ट इनके कहने का ये मतलब है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते थे कि हज़रत अली इनके बाद जो है वो खिलाफत का मामला संभाले, लेकिन लोग यहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाजे को छोड़ के अल सकीफ़ा के अंदर मीटिंग कर रहे थे, जिसमें हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये डिसाइड कर रहे थे कि खलीफा कौन बनेगा। तो ये तबर्रा करते हुए कहते हैं कि नबी पाक तो चाहते थे इमाम हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, लेकिन ये जो वहाँ मीटिंग के अंदर जो ये कॉन्स्पिरेसी बन रही थी, उस विवाद की वजह से, वहाँ मनगढ़ंत बातों की वजह से ऐसा हो नहीं सका। यानी हज़रत अली, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत को आपका ख़ामेनी भी सच्ची नहीं तस्लीम करता। आगे किताब के अंदर आपका यही ख़ामेनाई लिखते हैं सहाबा इकराम के बारे में कि कुछ सहाबा इकराम और कुछ पैसे वाले रसूखदार लोग ये शुरुआत में सच के रास्ते के साथ थे, लेकिन बाद में ये सच के रास्ते से माज़अल्लाह भटक गए और फिर ये सच के रास्ते पे कभी नहीं आए। यानी पूरी ज़िंदगी ये जो है वो सच से जो है वो हट गए। यानी ये किन के बारे में जिक्र है? ये सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला। आप कहते हो कि सहाबा इकराम को बुरा कहने से मना कर दिया, वो फतवा दे दिया। वो फतवा सिर्फ एक पर्दा है कि सहाबा इकराम को बुरा भला नहीं कहा जाएगा, लेकिन बुरा भला किसी को ना कहना क्या उसकी सच्चाई को तस्लीम करना है? हरगिज़ ऐसा नहीं। मिसाल के तौर पर कोई किसी की वजह से कि सुन्नियों के अंदर ये मामला बना रहे, सहाबा को खुलेआम बुरा नहीं कहता, लेकिन क्या अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला खिलाफत को तस्लीम करते हैं? हरगिज़ नहीं। तो ये कहना सहाबा इकराम के बारे में कि वो सच के रास्ते से भटक गए, वो भी क्यों? लालच और दुनिया के चक्कर में, माज़अल्लाह, यानी लालच में और दुनिया के चक्कर में वो हक़ के रास्ते से जो है वो भटक गए और सही रास्ते से, नेकी के रास्ते से वो हट गए। पहले शुरुआत में जो है वो नेकी के रास्ते पे थे। अब रहा है कि ख़ामेनाई जिसका ताल्लुक़ इस्ना अशरिया यानी 12 इमाम को मानने वाले लोगों का अकीदा है, क्योंकि शियाओं के अंदर एक इस्माइली भी है जिनका 6 इमाम को मानने का अकीदा है, लेकिन फ़िलहाल बात 12 की हो रही है। और इसके उस्ताद ख़ुमैनी को ही देख लो आप, उसकी विकीपीडिया पढ़ लो, वहाँ भी उसका ताल्लुक़ जो है वो 12 के तौर पर लिखा हुआ है। इस्ना अशरिया जो शियाओं का फ़िरका है उसके साथ ताल्लुक़ है। और ये मैं बता दूँ, जिस तरह अहले सुन्नत के अंदर हनफी जमात पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, ऐसी शियाओं के अंदर ये 12 इमाम को मानने वाले
शियाओं की तादाद बहुत ज़्यादा है, यानी शियाओं की मेजोरिटी ही इस फ़िरके की है। आप इस तरीके से इस मसले को समझ सकते हैं। अब रहा ये कि इनका अकीदा क्या है। जब इनका नाम ही 12 इमाम को मानने वाला है, इस फ़िरके का नाम ही है कि हम वो हैं जो 12 इमाम को मानते हैं, यानी 12 इमाम को सबसे अफजल और ऊपर मानते हैं, ये उनका बुनियादी अकीदा है। मिसाल के तौर पे इसी अकीदे के ताल्लुक से आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया कि शियाओं के अंदर 3 किस्में हैं। सबसे पहले गाली, यानी ये हद से ज़्यादा गुलू करने वाले लोग हैं कि ये मुनकरात ज़रूरियात दीन हो, मसलन कुरान मजीद को नाकिस बताएं। यानी ये जो 12 इमामों वाले लोग हैं ये कुरान मजीद को नाकिस बताते हैं, माज़अल्लाह ये कुरान मुकम्मल किताब नहीं है। और इसके बारे में भी सबूत खुमैनी की किताब के अंदर दर्ज है, जिसका हमने पिछले वीडियो के अंदर जिक्र किया है। तो आप बताएं कि ऐसे का शागिर्द बहुत सही अकीदा सुन्नी होगा। अमीरुल मोमिनीन हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में कि ये उनको अंबिया साबिकीन यानी पिछले नबियों से जो है वो उनको ऊपर और अफजल जानते हैं, माज़अल्लाह। और ये लोग यकीनन क़त्अन इजमान काफिर है, इसके अंदर जो है वो उलमा का कोई हमारे इख्तिलाफ नहीं। यानी कुरान मुकद्दस मुकम्मल नहीं, ये बात तो खुद कुरान के खिलाफ है। जब अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर इसकी जिम्मेदारी खुद ले ली तो अब कोई शख्स कैसे कह सकता है कि कुरान मुकम्मल नहीं, इसके हराम हलाल को बदल दिया गया, असली कुरान छुपा लिया गया वगैरह वगैरह। तो खामिना है कि मुझे लगता है कि ये कुफ्र के मामले बहुत आसान है बताना। ये ज़रूरी नहीं कि उसका तहरीर, बल्कि मैंने तो किताब तहरीर दिखा भी दी कि उसका ताल्लुक़, उसका टीचर, उसका सहाबाओं के बारे में नज़रिया, सहाबा को भटकने वाला माज़अल्लाह बताना, और ये कहना कि नबी पाक हज़रत अली को खिलाफत देना चाहते थे लेकिन वहाँ पर वो जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही थी उसकी वजह से ऐसा नहीं हो सका। तो ये चीज़ें बताती हैं कि खामिनाई का अकीदा शियाओं वाला ही है, और शियाओं का अकीदा 1400 साल से उलमा बता रहे हैं कि कुफरिया अकीदा है। अगर शियाओं का अकीदा कुफरिया नहीं होता तो सिरातुल इस्लाम भाई जैसे तो लोग पैदा भी नहीं हुए थे, तब से शिया सुन्नी का मामला चल रहा है, तो उलमा अब तक इसको सुलझा नहीं लेते। अगर आपको शिया सुन्नी एक करना है तो वो गलत अकीदों से जो शख्स तौबा कर ले वो वापस मुसलमान बन जाएगा। जैसे कादियानी तौबा कर ले तो उसको इस्लाम कबूल करवा दिया जाएगा। बाकी जो कुछ आपने उलमा के ताल्लुक से गलत अल्फाज इस्तेमाल किए, अल्लाह ताला आपको तौफीक दे, तौबा की और अक्ल सलीम दे। बाकी आप कोई एतराज़ करेंगे, अगर उलमा अहले सुन्नत मसरूफ़ भी हैं जवाब ना देने में, तो इंशाअल्लाह तालिब इल्म सोशल मीडिया पे मौजूद है, तसल्ली बख्श आपको हर एतराज़ का जवाब दिया जाएगा। आपको इंशाअल्लाह ताला तन्हा नहीं छोड़ा जाएगा। सर पे हर वक्त रहेंगे तेरे आंचल की तरह, तो गज़ल है तुझे तन्हा नहीं होने देंगे। लिहाजा उलमा के ताल्लुक से ये अल्फाज कहना कि मैदान में निकल के काम करो, इसके ताल्लुक से आपको 2 हदीसें बताता हूँ। अगर आप मुसलमानों के फेवर में जिहाद के अंदर शहीद हो भी गए तो भी आप बरोज़ क़यामत उलमा के कलम की स्याही के बराबर नहीं हो सकते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बरोज़ क़यामत उलमा की लिखी हुई जो स्याही है उसको और शहीदों के खून को तोला जाएगा, यानी ये स्याही उस खून के मुकाबले में तोली जाएगी। और एक रिवायत के अंदर है कि ये स्याही खून के ऊपर गालिब आ जाएगी। यहाँ तक कि एक रिवायत के अंदर मिलता है कि जो शहीद होने वाले अल्लाह तबारक व तआला की राह में जब वो बरोज़ क़यामत आलिमों का मकाम देखेंगे तो वो ये हसरत करेंगे काश हम भी आलिम होते। तो आप ये बात समझें कि जो शहीद को मैदान जंग में जान देने के बाद जो मर्तबा मिलता है, आलिम को बिना जान दिए अपनी कलम से लोगों की इस्लाह करने पर वो मर्तबा मिलता है। लिहाजा उलमा के हक़ को हल्का नहीं समझना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो हमारे आलिमों का हक़ ना पहचाने वो हम में से नहीं है। और बरोज़ क़यामत अल्लाह तबारक व तआला जिहाद में शहीद हुए लोगों से और आबिदों से ये फरमाएगा कि तुम जन्नत में जाओ। तब आलिम कहेंगे ए अल्लाह अज़्ज़ा वजल कि इन्होंने हमारे बताए से जिहाद किया और आबिद ने इबादत हमारे बताए से की, हमने उनको इबादत के तरीके बताए, सिखाए, समझाए। अगर ये जन्नत में जा रहे हैं तो हमारा क्या? तब अल्लाह तबारक व तआला उलमा की गिरोह से कहेगा आप मेरे नज़दीक बाज़ फरिश्तों की मानिंदे आप शफात कीजिए, आपकी शफात कबूल होगी। उसके बाद उलमा लोगों की शफात करेंगे और लेके जाएंगे। इसलिए एक सूफिया का कौल भी है कि बाज़ लोग आलिमों के और पीरों के सिर्फ हाथ चूमने की वजह से बख्शे जाएंगे। और आप उलमा के ऊपर इस तरीके के अल्फाज के जो शियाओं के अकीदों से आपको हिफाजत कर रहे हैं कि उनके ताल्लुक से कि आप मैदान में क्या काम कर रहे हैं, आप मैदान में शहीद भी हो जाएंगे तब भी लिखी हुई कलम की स्याही के बराबर आप उनके नहीं पहुँच सकते। और जो शियाओं के अकीदों पर बात करने पर बार बार लोग कहते हैं कि फ़लाँ यहूदियों का एजेंट है, फ़लाँ अमेरिका का सपोर्टर है, तो सबसे पहले इस बात को समझना चाहिए कि इस्लाम के अंदर यहूदियों का ही ये तरीका था कि जब इस्लाम के अंदर फ़र्का पैदा करना हो या इस्लाम के नौजवानों को भटकाना हो, सबसे पहला काम यहूदियों ने अपने एजेंट छोड़ के उलमाओं से दूर किया। अब आप देख लें कि कौन यहूदियों का एजेंट बनने का काम कर रहा है और कौन आपको हक बातिल समझाने का काम कर रहा है। वहाबियत कैसे आई आप उसकी हिस्ट्री देख लें। अंग्रेज़ों ने इसी तरीके से कुछ लोगों को
मुसलमानों के अंदर छोड़ा जिन्होंने नए नए फतवे दिए कि मज़ारों पे जाना हराम है, औलिया से मांगना हराम है, और इसी का नतीजा ये हुआ कि अंग्रेज़ों के यहूदियों के छोड़े गए वो दुश्मन इन्होंने अहले सुन्नत के अंदर टुकड़े करे। तो कोई भी शख्स ये जानता है कि अगर कौम उलमा से जुड़ी रहेगी, औलिया सूफिया से जुड़ी रहेगी, तो वो कभी गुमराह नहीं हो सकती। तो यहूदियों का पहला काम वही है जो हमारे सिरात भाई कह रहे हैं कि उलमा को देख के नफरत पैदा होती है। यही यहूदी चाहते हैं कि नौजवान नस्ल अपने आलिमों से दूर हो, उनसे बदजन हो और ख़ुद फैसले करे, ताकि इनको जज्बात में बहकाना बहुत आसान हो। आलिमों के मकाम का अंदाज़ा भी इस बात से लगा सकते हैं कि शैतान भी डायरेक्ट किसी पे हमला करके किसी को दीन से दूर नहीं करता, बल्कि वो भी दिलों के अंदर उलमा की नफरत पैदा करता है, क्योंकि वो जानता है कुफ्र में और ईमान के दरमियान एक इल्म की आड़ है जो उलमा कुफ्र को ईमान से मिलने से बचाए हुए हैं। अगर ये आलिमों की इज्जत चली जाएगी लोगों के दिलों से, तो कुफ्र को ईमान से मिलाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। फिर हाल यही होगा कि लोग कुफ्र को ईमान बताएंगे, जज्बात में आएंगे और कुफ्र के ऊपर पर्दा डाल के ये कहेंगे ये सब चीज़ें बराबर है और आलिमों से दूर रहो, इन्होंने तो हमारे लिए नफरत पैदा की है माज़अल्लाह। तो यहूदियों का काम कौन कर रहा है, इस पर भी गौर करना चाहिए कि उलमा से आज बदजन कौन है, उलमा पे लानतान करने वाला कौन है, कौन कुफ्र को ईमान बताने पे लगा है और कौन लोग कुफ्र और ईमान को अलग करने के ऊपर मेहनत कर रहे हैं। ये बचकाना बातें करना कि कोई तहरीर हो कुफ्र की, तो जाहिर सी बात है कि दज्जाल को काफिर भी आपने उलमा के कहने से माना है। उलमा ने कुरान हदीस की रोशनी में बताया कि दज्जाल काफिर है, तब जाके आपने माना है कि दज्जाल काफिर है। इसी तरह कादियानी के कुफ्र से उलमा ने आगाह किया कि ये इस्लाम नहीं है, ये कुफ्र है, तब जाके आपने सीखा कि कुफ्र क्या है, ईमान क्या है। लिहाजा जब उलमा ने तमाम बातिल लोगों के बातिल अकायद को बताया, आपने सीखा। अब जब उलमा शिया के अकायद बताते हैं तो आप कहते हैं कि नहीं ये तो ईमान है। तो अगर ये ईमान है और तहरीर चाहिए, स्पीच चाहिए, तो दज्जाल की तहरीर स्पीच तो आपके पास भी नहीं है, उसको काफिर भी सिर्फ उलमा के कहने से माना गया है, क्योंकि उलमा ने कुरान हदीस की रोशनी में आप तक ये बात पहुंचाई। तो शियाओं का काफिर होने की जब बात पहुंचाई तो उसमें तकलीफ क्यों? यही तो यहूदियों की चाल है कि मुसलमानों को, नौजवानों को शिया सुन्नी कुफ्र ईमान को एक मिला के कर दिया जाए, उलमा से दूर कर दिया जाए। जब उलमा से कौम दूर हो जाएगी, अपने आलिमों को बुरा भला कहेगी, तो इनको बहकाने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि सच्चाई और बुराई का फ़र्क उलमा है जो कौम को सिखाते हैं। वरना कौम का हाल ये है कि घर में बाप मर भी जाए तो ये जनाजे की नमाज नहीं पढ़ा सकते, उनका कफन नहीं काट सकते, उस वक्त भी ये उलमा के मोहताज रहेंगे और हश्र में भी उलमा के मोहताज रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों को अक़ल सलीम दे, अपने मस्जिदों के इमामों की, उलमा की, मशाइख की इज्जत करने, एहतराम करने, उनसे मोहब्बत करने की तौफीक दे और सोशल मीडिया पे उलमा के खिलाफ चलाए जा रहे इस प्रोपेगेंडे से उलमा अहले सुन्नत की हिफाजत फरमाए। और सबसे आखिरी बेहतरीन बात यह कि अगर आपको लगता है कि खामिनाई का कोई अकीदा ख़राब नहीं है इस्लाम के, तो मैं आपसे कहता हूँ कि आप ही खामिनाई का अकीदा बता दीजिए कि 12 इमामों के बारे में उनका अकीदा ऐसा नहीं है। आप कोई स्पीच दिखा दो, कोई तहरीर दिखा दो जिसमें खामिनाई ने लिखा हो कि मैं 12 इमामों को, हज़रत अली को बाकी अंबिया से ऊपर नहीं समझता। अगर आप ये तहरीर दिखा दो कि उनका ये कुफ्रिया अकीदों में से कोई अकीदा नहीं है, कुरान के ताल्लुक से या सहाबा किराम के कोई ताल्लुक से, तो मैं आपको 1 लाख का इनाम भी दूंगा, साथ में अपना इंस्टाग्राम डिलीट कर दूंगा, 5 लाख सब्सक्राइबर वाला यूट्यूब चैनल भी डिलीट मार दूंगा। अगर आपको लगता है कि हमसे कुफ्र साबित नहीं हो पा रहा, तो आप ईमान ही साबित कर दो कि ये कुफ्री अकीदे जिसका हम दावा कर रहे हैं कि शियाओं के बुनियादी अकीदे ये उनमें नहीं पाए जाते या उन्होंने इसका इनकार किया है, तो मैं आपको 1 लाख रुपए बतौर इनाम दूंगा। आप ही उसका ऐसा कोई अकीदा, कोई तहरीर, कोई स्पीच दिखा दोगे जिसके अंदर वो कहे कि मैं हज़रत अली को अंबिया से अफजल नहीं मानता, क्योंकि शियाओं का ये बुनियादी अकीदा है। इनके आलिमों में, इनके जाहिलों में, सब के अंदर ये अकीदा पाया जाता है। इसके अलावा आपने एक बात और कही कि शियाओं के अंदर मुता, तो ये हमारा फ़िक़ही मामला है, यानी ये तो फ़िक़ही इख्तिलाफ़ी मसला है मुता के ताल्लुक से। चल तुझे भी बख्शवा दूं, तेरी बारी आ गई।